A very good morning, my dear friends. This side CA Manoj Lamba from Chandigarh. Friends, as you know, today webinar is kept on a very catchy and interesting topic, that is smart auditing. Now, audit is replaced by smart audit, and how by using artificial intelligence we can transform our balance sheet audit. This is the main purpose of today's webinar. Friends, please join fast and write your introduction in the chat box and tell me whether my voice is coming properly. Am I properly audible? Give your introduction by writing your name, city, and profession so that we can know each other and interact in a better manner. And my second hand-folded humble request to all participants that use the chat box to the maximum extent so that we can interact with each other and can discuss the things in a better manner. Are you ready? Please write in the chat box your introduction and tell me whether you are ready or not. Welcome Rajesh Mittal ji from New Delhi. Ashish ji from where you are. Prem Kumar Pandey ji from where you are. And Sandeep ji, give your introduction. Shab ji, please. Rajesh ji, please. Jayesh, Rudeep. Everyone requested to give their introductions. Jayesh ji from Junagadh, Gujarat, very nice. Sandeep ji from Maharashtra, very nice. So people from every state, almost every state of the India is joining this webinar. Very nice to see everyone here. And special thanks for spending your valuable time if this Sunday to learn something, because nowadays it is very necessary for professional like us to spend time on learning, invest on learning, because until we learn new technologies, new technique, new artificial intelligence tools, we are far behind in the practice. So friends, without wasting much time, I am straightforward coming to my topic, smart audit and how AI can do that. चलिए शुरुआत करते हैं। आज से पहले हम कैसे ऑडिट करते थे, थोड़े डिस्कशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे। आज से पहले हम ऑडिट कैसे करते थे? ऑडिट करने का ढंग होता था कि हम अपने आर्टिकल क्लर्क को या ऑडिट असिस्टेंट को या एम्प्लॉय को बोलते थे कि लेजर स्क्रूटनी की जाए, बैलेंस शीट कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए। अब मेरा सवाल ये है, ये ट्रेडिशनल ऑडिट करने का जो ये ढंग है, क्या ये ढंग बदला जा सकता है? अगर बदला जा सकता है तो वो कैसे बदला जा सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इसमें मेरी मदद कर सकती है? तो दोस्तों, क्या जो मेरा आर्टिकल क्लर्क का खर्चा होता था, जो मेरा ऑडिट असिस्टेंट का खर्चा होता था, जो मेरी एम्प्लॉइज की ट्रैवलिंग कॉस्ट होती थी, जो हम कई कई मैन आवर्स एक ऑडिट पे लगाते थे, किसी तरह उसे कम कर कर अपने ऑडिट को कोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। मैंने दो वर्ड यूज किए सर, कोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव। cost effective and most effective. Yes, my dear friend, we can do that. With the help of artificial intelligence, this can be possible. Are you want to know that how it is possible? Please write yes or no. Please write yes or no. Sharji is writing, Chopra is writing yes, Ganesh Agarwal is writing yes. Thank you, my dear friend. तो मैं आपको बताऊंगा सर, आज तक हम क्या करते रहे, बैलेंस शीट आती थी क्लाइंट से, बैलेंस शीट को बैठ के एक एक एंट्रीज को बड़ा फोकस होकर चेक करते थे कि क्या डिस्क्रिपेंसीज, क्या क्वेरी पॉइंट हो सकते हैं मेरे क्लाइंट से पूछने के लिए। अब मैंने उसके लिए साधन निकाला और एक टूल बनाया, और वो टूल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और किस तरह से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं ये भी बताऊंगा।
So without wasting much time, coming straight forward to the topic, and I will give you the demo how using the artificial intelligence we can change the style of our audit practice. तो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग आज की डेट में एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो जेमिनी है, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो डीप सीक है, चाहे वो सोनाटा है, चाहे वो कुछ और कह लीजिए क्या है माइक्रोसॉफ्ट पायलट है, को पायलट है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सीए की प्रैक्टिस में इन जीपीटीज को या इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को यूज कर रहे हैं अब तक? यस और नो हमारे व्यूअर्स में से। यूजिंग चैट जीपी क्लाउड ए, गणेश अग्रवाल इज राइटिंग, वेरी नाइस। What about others? Rudeep Thakur Tekal ji, yes, using GPT. Okay. And how many you have idea about this GPT? What is the full form of this GPT? इस GPT की full form क्या है सर? Yes, please tell me. What is the full form of GPT? Without doing Google. गूगल से देखे बगैर कोई बता सकता है जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मेरे ये बताइए, गूगल और जीपीटी में क्या फर्क है? जल्दी जल्दी हर शेयर करते जाइए। आज हम कुछ ना कुछ फ्रूट लेके जाएंगे यहां से। गूगल और जीपीटी में क्या फर्क है? जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चलिए मैं बताता हूं, अगर कोई नहीं बता रहा। जीपीटी स्टैंड फॉर सर जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये भी मैं आपको बताता हूं कि गूगल और जीपीटी में क्या फर्क है। अब तक गूगल देवता www वर्ल्ड वाइड वेब, जब हम गूगल से कुछ पूछते थे, गूगल देवता को नमस्कार करते थे और कुछ पूछते थे, तो गूगल बाबा वर्ल्ड वाइड वेब का एक चक्कर लगाते थे। उस वर्ल्ड वाइड वेब के चक्कर लगाने के बाद आपके सवाल के जवाब में जो भी उसे जानकारी प्राप्त होती थी, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते थे। ये काम था गूगल देवता का। आज एआई के रूप में, जीपीटी के रूप में एक नया देवता अवतार ले गया, जिसे हम नेचुरल देवता तो नहीं कह रहे, आर्टिफिशियल देवता कह रहे। ये क्या कह रहा है? जनरेटिव pre-trained transformer. That means it is capable of generating new responses every time. Whatever question you will ask, it will not only find from www World Wide Web, but behind that, it will do its own analysis. It will apply its artificial intelligence and generate new and new effective and more innovative response from you. Hope every one of you got an idea. गूगल देवता और जीपीटी देवता में क्या फर्क है? जी सर समझ आ गया? यस और नो तो लिख दीजिए। सर आई एम नॉट रिपीटिंग, मैंने रिक्वेस्ट है हैंड फोल्डेड कि आप हाँ ना जरूर बताते रहे ताकि मेरे को समझ आता। चलिए सर, अब अगला सवाल मेरा ये है, एक जीपीटी होती है जनरलाइज्ड जीपीटी और दूसरी जीपीटी होती है सर कस्टमाइज्ड जीपीटी। क्या जनरलाइज्ड जीपीटी और कस्टमाइज्ड जीपीटी में कोई फर्क होता है? क्या जनरलाइज्ड जीपीटी और कस्टमाइज्ड जीपीटी में कुछ फर्क होता है? शरद जी कहते हैं होता है, पांडे साहब कह रहे हैं होता है। क्या होता है मैं बताता हूं। जनरलाइज्ड जीपीटी इज कैपेबल ऑफ डूइंग जनरलाइज्ड थिंग्स। I am not saying that कि generalized GPT cannot do the specialized task or specific task. It can be capable of performing the same, but customized GPT give you more accurate, more authentic, more effective, more accurate, more authentic, more effective replies to your query, because
It is customized according to the client need. In the same manner, my balance sheet audit GPT, which is developed by me, which I will showcase to you, is customized for you chartered accountants. Getting my idea? ये मैंने हर डिजाइन की है अपने भाई बहनों के लिए, जिससे वो आपके ऑडिट की परिभाषा को सरल बना देंगे। अब आपको आइडिया हो गया कि हमारा आज इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज टेल यस और नो। प्लीज। ओके सर। चलिए फिर अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, हमें करना क्या है। राजेश जी, प्रेम जी बने रहिए। अब मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के हाथ शेयर कर रहा हूं। Are you able to see my chat GPT on your screen? Please write yes or no. Are you able to see chat GPT on your screen? Please write yes or no. Okay. So I assume GPT is visible to you. So what here I am doing, here I am going to the that plus button, going to my GPT. Here a list of all GPT developed by me is coming here. And that GPT name is CA Audit Bot. This GPT name is CA Audit Bot. Are you able to see that on your screen? CA Audit Bot by Manoj Lamba is visible on your screen. Please tell yes or no. Please tell yes or no. Okay, thank you. Here what I will do. Here I am attaching some files. What balance sheet file I am attaching here? I am attaching the balance sheet. I am attaching depreciation chart. I am attaching list. One by one I am. First I am attached balance sheet here. Comparative balance sheet I am attached here. Then depreciation chart I have attached here. Then debtors list I have attached it. Debtor and creditor list. After that, I have attached schedules here. Schedule to the balance sheet. तो all the four file I have attached. चारों फाइलें सर मैंने इसको दे दी। अब अगला काम मैं क्या कर रहा हूं? अगला काम सर मैं यहां पर जा रहा हूं, जहां पर ये मेरे फोल्डर पड़े हैं, यहां पर मैंने एक प्रॉम्प्ट की फाइल बनाई हुई है और यहां से ये मैं प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूं। ये सर मैंने प्रॉम्प्ट यहां पे कॉपी किया और ये प्रॉम्प्ट मैंने अपनी जीपीटी में पेस्ट कर दिया। सर समझ आ गया मैंने क्या किया? सर मैंने चारों फाइलें लगाई, मैंने बैलेंस शीट लगाई, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ट लगाया, मैंने शेड्यूल्स लगाए, मैंने डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट लगाई, फिर मैंने प्रॉम्प्ट इसको दिया। अब अगला सवाल आपका ये होना चाहिए सर, ये प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये प्रॉम्प्ट क्या होता है? तो दोस्तों ये प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शन, वो क्वेरी, वो
कमांड है जो आप अपने जीपीटी को देते हैं। और यकीन मानिए, ये प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होगा, जितना ज्यादा इन्हांस्ड होगा, जितना ज्यादा सीए ऑथेंटिक बुद्धि से आएगा, उतना बढ़िया ऑडिट ये होगा। तो ये सारी टेक्निक को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई की भाषा में बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो मैंने अपना सीए वाला दिमाग यहां पर इस्तेमाल कर कर आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सीए को 30 साल में समझा है, अनुभव किया है, और जो मेरा अनुभव था वो मैंने इस प्रॉम्प्ट में डाला कि ऑडिट में हम करते क्या थे। अब वो काम मेरे इस अलादीन के चिराग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे कराना है, इस वर्चुअल असिस्टेंट से कैसे कराना है। और आफ्टर पुटिंग द enhance, I will click on that arrow button. See the magic now. What will happen? See the magic now. It will start analyzing. It will taking little time, but it start analyzing. Yes, give me complete analysis at once as per prompt. सर देखिए आप, इसने क्या किया, मैंने इसको बैलेंस शीट दी थी, मैंने इसको शेड्यूल दिए थे। पहले इसने रेशियो एनालिसिस किया था, रेशियो एनालिसिस दिखाता हूं मैं बाद में। तो कंप्रहेंसिव ऑडिट एनालिसिस ऑफ सो एंड सो फर्म ए प्रोप्राइटरशिप एंटिटी, पहले एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल समरी कंपैरेटिव रेफर टू द अटैच्ड टेबल फॉर की इनसाइट्स। तो क्लिक ऑन दैट। तो टेबल अभी बाद में देखते हैं। ये एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल समरी क्या कह रही है, रेवेन्यू ड्रॉप्ड बाय 41% विद कोरोस्पोंडिंग फॉल्स इन सेल। पिछले साल से रेवेन्यू 41% कम हो गया। ये मेरा आर्टिकल बताता था सर मेरे को, ये यहां पर मेरी जीपीटी ने बता दिया। दूसरा, इसने एनालिसिस किया पिछले साल के कंपैरेटिवली नेट प्रॉफिट मेरा डिक्लाइंड हो गया है सर। कितना डिक्लाइंड हो गया, 41%। 41% with a corresponding fall in COGS. Then net profit declined by 52%. Capital erosion observed. Capital erosion observed. Debtor and cash balances also dropped. Debt to equity ratio exceeded 9x, indicating risk of over leverage. Then detailed audit observation under financial act. Observation on capital account audit. Drawings of 2.42 lakhs were made against the profit of 4.39 lakhs. Excessive personal withdrawal reduced capital base. Suggestive action, track capital versus net profit, disclose in clause 18 if drawing exceed profits. Format, drawing versus net profit, net with breakup. Then fixed asset and depreciation, minor additions made to the computer block. अपने आप बता दिया इसने सर
कि कंप्यूटर ब्लॉक में एडिशन हुई है. Depreciation calculated correctly under written down value method, no revaluation done. And IT depreciation block matches books 3CD close 18 and 19 disclosure required. Then about loan, secured and unsecured. Observation, secured loan increased to 1.31% crore from 1.4 crore, unsecured rose to 72.03 lakh. Then implication, high debt, check section 269 SS and 269T compliance, confirm PAN interest term, suggested action, loan registered with PAN, agreement, interest term, closed 24 and 31 disclosure. Then coming to the Sunday data dropped from 2.53 crore to 1.77 crore. Implication, no edging provided, edging नहीं दी मैंने. Risk if 6% more than 6 months that is not provision. Suggested action, edging report, threats, impact check, match turnover. Then coming to the loans and advances. ऑब्जर्वेशन क्या है जीपीटी की? एडवांसेस गिवन टू द रिलेटिव एंड स्टाफ. सतपाल एचयूएफ को 3.7 लाख, मीनू इंटरेस्ट में 15 लाख. व्हाट इज शोइंग? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. AS18 applicability is there. Suggested disclosure in clause 23 note, ensure GST credit match with 2B. Then coming to the current liability. Observation character 77 lakh, previous year 1.4 crore. Statutory duty 12,000 only. Implication, check and paid GST, TDS, review RCM. Age wise character list not provided. Clause 21-26 disclosure is required. Then cash and bank balances. Observation, cash is 2.5 lakh, mostly legitimate, no dormant accounts. 269 ST is not triggered. BRS is not enclosed. Pair internal cash flow, perform BRS monthly. Then coming to the inventory. Inventory closing stock की ये है, implication ये है, suggested AS2 का valuation note पूरा करना है, physical verification करनी है. Then coming to the expenses. एक्सपेंसिस पे ऑब्जर्वेशन ऑडिट फॉर नील है, सैलरी नील है, इंटरेस्ट 55,000 रुपए का है, रेंट एंड इंडेक्स को ड्रॉप होगी. इम्प्लीकेशन, पेमेंट टू द प्रोफेशनल मे बी इन कैश, चेक फॉर डिसअलाउंसेस. सजेस्टेड एक्शन, वाउचर चेक, एक्सपेंसिस कैप, मॉनिटर, एवरीथिंग इज टू बी चेक. देन ऑब्जर्वेशन, ₹3900 includes FDR and PPF interest, must match with 26 AF, cross check with bank interest and TDS entry. Then report on statutory compliances. Then all the red flags. This point is very important. Debt equity ratio exceed 9x, over leveraging. Main highlight point. Drawing versus profit mismatch is there. Then advance to relatives without clear purpose. बताया नहीं. रेड फ्लैग कौन से दे रहे हैं ऑडिटर को? सारे रेड फ्लैग आइडेंटिफाई कर दिए. डेट इक्विटी रेशियो हाई है, ड्राइंग और प्रॉफिट मिसमैच कर रहे हैं, एडवांस टू रिलेटिव का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, कोई एजिंग शेड्यूल प्रोवाइड नहीं किए गए, डेटर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं किए गए, जीएसटी रिकवरेबल अनरिकग्नाइज्ड है, ऑडिट फीस का प्रोविजन नहीं है, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में मेड नहीं किए हैं. 7 रेड फ्लैग आपको दे दिए 1 सेकंड में कर. और सजेस्टेड इंटरनल कंट्रोल इंप्रूवमेंट कहां करनी है? डेटर एजिंग शेड्यूल बनाना है, मंथली रिव्यू करना है, कैपिटल मूवमेंट रजिस्टर चेक करना है, टू बी और इनपिट का रिकंसिलेशन करना है, एडवांस टू रिलेटेड पार्टी के लिए पॉलिसी बनानी है विद बोर्ड अप्रूवल, लोन और एडवांसेस की कंफर्मेशन लेनी है, कैश की पेमेंट जब 50,000 से ज्यादा है रजिस्टर मेंटेन करने हैं, ऑडिट प्रोविजन पर नोट देना है, कंप्लायंस कैलेंडर बनाना है, क्लाइंट को एक टीडीएस, जीएसटी और इनकम टैक्स का कंप्लायंस कब कब किया, एक्सपेंस पॉलिसी नोट देने हैं, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर बनाना है विद एनआरबी टाइप. और एनेक्जर चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या चेक करना चाहिए आपको, सारा कुछ. जीएसटी, टू बी वाली बुक्स रिकंसिलेशन शीट, लोन कंफर्मेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डेटर एंड क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट, कैश बुक एंड डेली कैश समरी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंटरी रजिस्टर, लोन सैंक्शन लेटर, कंटिजेंसी लायबिलिटी स्टेटमेंट, टैक्स रिफंड एंड टीडीएस रिसीवेबल ट्रैकर, ऑडिट फीस एंड लीगल प्रोविजनिंग नोट. तो ये चीजें आपको चेक भी करनी है और इनके वर्किंग पेपर आपकी फाइल में भी होने चाहिए. देन कौन कौन सी क्लोज में आपकी 3CD में रिपोर्टिंग आएगी? 18 में आ सकती है, वो बता रही है, चेक कर लेना 18 में क्या लिखना है, 23 में क्या लिखना है, क्लोज 24 में क्या लिखना है, क्लोज 34 में क्या लिखना है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे क्या नोट देना है. तो जस्ट बाय गिविंग वन प्रॉम्प्ट माय डियर फ्रेंड्स, I have given you a demo कि कैसे सर
आप कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा जीपीटी वर्जन यूज कर रहे हो सर? आपने बैलेंस शीट शेड्यूल अपलोड करा है, वो एक बार दिखाते हो तो बढ़िया रहेंगे। जैसे आपको दिखा दूंगा, सिंपल बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने किया है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, नो इश्यू। और अब आपने देखा मैंने सिर्फ उसको बैलेंस शीट दी, टैली से मैंने डाउनलोड किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। जो टैली से बैलेंस शीट बनती है वो बैलेंस शीट मैंने इसको दे दी, कंपैरेटिव दे दी, और शेड्यूल्स दे दिए, डेटा कैरेक्टर की लिस्ट दे दी। कंप्लीट एनालिसिस जो आपके आर्टिकल 2-2 3-3 महीने लगा के करते थे, बड़ी से बड़ी बैलेंस शीट का एनालिसिस ये कुछ ही समय में कर पाएगा। अब आते हैं आगे, एक चीज जो हम देख नहीं पाए थे, जो मेरी जीपीटी और कर सकती है, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एक मिनट से देखिएगा। Once again, I am going to the my GPT, IC board audit board GPT. And once again, I ask it to do the analysis. Once again, I am attaching the balance sheet file. Then depreciation chart is there. Then debtor creditor list is there. Then schedule is there. Schedule is there. और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया सर, और दोबारा से आपको अब जो एग्जीक्यूटिव एनालिसिस है वो दिखाता हूँ, जो हम पहले छोड़ गए थे। पहले मैंने एक जर्नलाइज्ड ऑडिट किया था, अब मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूं, कंप्लीट एनालिसिस कर रहा हूं बैलेंस शीट का। सर देखिए, मैंने कुछ नहीं दिया, इसने सेल्स लिया, ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में सेल इतनी है, करंट फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सेल इतनी थी, सेल में 41.05% का फॉल आया। फिर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करता हूं, इस करंट ईयर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी है, पिछले साल इतनी थी, इसमें भी 40.67% का फॉल आया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुआ है, जो हमारा स्क्रूटनी में क्वेश्चन किया जाता है, तो आपका उसका भी एनालिसिस दे दिया। करंट ईयर में जीपी रेट 6.7% है, प्रीवियस ईयर में 7.3% थी, और यहाँ पर कुछ कमेंट नहीं किया क्योंकि माइनर फॉल। तो नेट प्रॉफिट भी बता रहा है, पिछले साल मेरा नेट प्रॉफिट 9 लाख रुपए का था, जो अब 4 लाख रुपए का है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधा रह गया है। ड्राइंग्स पिछले साल का कोई कंपैरेटिव नहीं है, इस साल की जो ड्राइंग्स इतनी है, खर्चों के अकॉर्डिंग कम। कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल इरोज हो गई है, प्रीवियस ईयर मेरी 31 लाख की कैपिटल थी, अब 22 लाख की कैपिटल रह गई है। कैपिटल कहां गई सोचिए, कहां खर्च किया? कोई कैपिटल एसेट परचेज की, कोई गाड़ी खरीद ली, कोई बच्चे की शादी कर दी, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन कर दी, कहां गया कैपिटल? क्योंकि ड्राइंग्स तो सिर्फ 2 लाख की हैं, क्वेश्चन मार्क। टोटल एसेट 21 की 22 थी, 6% बढ़ी है। फिक्स एसेट में पिछली बार 377 की थी, इस बार 356 है, 5% गिर की है, इट मे बी ड्यू टू द डेप्रिसिएशन। टोटल लायबिलिटीज आपको बता रहा है ये 182 थी, इस बार 204 होगी, 11.4। सिक्योर लोन में बता रहा है कि 14.76% की इंक्रीज हुई है, ये आपको इंडिकेशन दे रही है कि 269S में कुछ हलचल है, वहां देखना है आपको। अनसिक्योर लोन में सेम, अनसिक्योर लोन बचे हैं, तो अनसिक्योर लोन किससे आए थे? कैश में तो नहीं आए थे। फिर क्या इसके ऊपर ब्याज दिया गया है? ब्याज दिया गया है तो टीडीएस काटा गया है कि नहीं काटा गया? एवरीथिंग इज देयर। डेट इक्विटी रेशियो बढ़ गई है सर, 5.61 से 9.19 हो गई है, 63.21 का चेंज आ गया है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस पे कोई मेजर चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट रेशियो एनालिसिस भी मेरी जीपीटी दे रही है सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको कुछ इस पे अच्छा लग रहा है सर कि ये टूल हमारे काम आ सकता है कि नहीं आ सकता? कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये टूल हमारे काम आ सकता है सर? यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। चलिए सर, अब कुछ और चीजें दिखाता हूं जो इस टूल से करेंगे। अब
अब दोबारा से मैं दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूं सर। आज डेटर्स को लेके बहुत सारे कंप्लायंसी हमें करने हैं। ये सर मैंने इसे एक स्टैंडर्डाइज प्रॉम्प्ट कॉपी किया। जस्ट ए मिनट, आई एम यहाँ पर मैंने डेटर की लिस्ट के ऊपर मंथन करना है सर। तो स्टैंडर्डाइज प्रॉम्प्ट फॉर एआई बेस्ड ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब मैं हेड वाइज कर रहा हूँ। तो ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट करने के लिए फिर मैंने अगेन इसको वही चारों फाइलें दे दी सर। चारों फाइलें दे दी सर दोबारा, और उसे कहा भैया आप मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट कर दो। ट्रेड रिसीवेबल ऑडिट सर। अभी तो शुरुआत है सर, मैं इसे धीरे धीरे एनहांस कर रहा हूं। देखिए सर, ट्रेड रिसीवेबल पर पूरी समरी आ गई है। ये कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल इस करंट ईयर में इतने हैं, प्रीवियस में इतने थे, सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो गई है। कितने परसेंट की ड्रॉप हुई है वो भी बता रहा है। फिर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे रहा है, कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है। कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो 314 दिन से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। ये जो 45 दिन वाली क्लोज आई है एमएसएमई है, इसकी रिपोर्टिंग पर आपको हेल्प करेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कोई नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पर इसकी कमेंट्री भी इसने देने की कोशिश की है। तो यहां पर इसने क्या किया, आपके लिए डेटर रिसीवेबल का ऑडिट किया। द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन योर अपलोडेड फाइनेंशियल, हाइलाइटिंग चेंजेस इन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड डेज आउटस्टैंडिंग। Now I will proceed with the detailed audit scope of trade receivable covering verification, confirmation, revenue leakage, internal control, required disclosure. Should I begin with section 2? Yes, please. मैंने आगे कहा आगे करो, पहले इसने एनालिसिस दिया, अब कंप्लीट डेटर का ऑडिट शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, डिटेल ऑडिट स्कोप, वेरिफिकेशन और कंप्लायंस, एग्जिस्टर एंड कंफर्मेशन प्रोसीजर, एजिंग एनालिसिस एंड क्रेडिट रिस्क, रेवेन्यू लिक्विडिटी एंड कट ऑफ, रिलेटेड पार्टी एंड इंटरनल कंट्रोल, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, सेक्शन 43BH सर, एंड एमएसएमई एक्सपोजर। गेटिंग माई पॉइंट। तो कैसे ये डेटर का ऑडिट होना है, क्या क्या आपने चेक करना है, वो भी आपको कंप्लीट चेक लिस्ट दे दी आज के टाइम में। फिर आपसे इसी के रिगार्डिंग रेड फ्लैग चाहिए, तो मैंने इसको यही कहा प्लीज डू या प्लीज प्रोवाइड। अब मैंने कहा रेड फ्लैग बताइए, इंटरनल कंट्रोल बताइए, ऑडिट एनेक्जर दे दीजिए। देखिए सर, रेड फ्लैग इज हाईलाइटेड। क्या क्या रेड फ्लैग इसमें दिए हैं आपके लिए, इंडिकेट्स एजिंग ओवर 12 मंथ एंड पोटेंशियल कलेक्शन इशू। कुछ डेटर ऐसे हैं, जाहिर कि उन्हें नाम भी दिया, राजदेव, कृष्णा उद्योग, डेकोरेटिव प्लाई विद डुअल ईयर अपीयरेंस शो दैट इट इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड, जिससे कलेक्शन इशू आ सकता है। कुछ नेगेटिव डेटर बैलेंसेस भी नजर आ रहे हैं। नो एक्सटर्नल बैलेंस कंफर्मेशन कोई नहीं की गई, जो SA 500-05 का उल्लंघन है। ऑडिट ट्रेल आपके वीकेंड हो जाएंगे। हाई परसेंटेज सेल का 70% मेरा सर डेटर्स में खड़ा है, सेल का 71%, मतलब सेल करते हैं कलेक्शन करते नहीं। तो इसका इंडिकेशन क्या आ रहा है, रेड फ्लैग हो सकता है कि आपने कैश में पैसे ले लिए हो जो किताबों में अकाउंट फॉर ही नहीं हुए और बुक्स में ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो इतना डेप्थ एनालिसिस। देन नो ECL और प्रोविजनिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कुछ नहीं किया गया है। देन राउंड ऑफ और आइडेंटिकल रिपीट एंट्रीज आर कमिंग, ओके, एंड देन नो डिस्क्लोजर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज गिवन। होता है इनमें काफी सारी पार्टी रिलेटेड पार्टी हो, लेकिन रिलेटेड पार्टी का कोई डिस्क्लोजर नहीं है। अब इसके लिए हमें सजेस्टेड इंटरनल कंट्रोल इंप्रूवमेंट क्या आ रहे हैं, रिसीवेबल मॉनिटरिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस कंफर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए, प्रोविजनिंग पॉलिसी के लिए क्या करना चाहिए, इनवाइस मैचिंग के लिए क्या करना चाहिए, रिलेटेड पार्टी ट्रैकिंग के लिए क्या करना चाहिए, रिकंसिलेशंस के लिए क्या करना चाहिए, कट ऑफ टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, एमएसएमई की फ्लैगिंग कैसे होगी, ऑडिट ट्रेल डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनेगा। देन एन एक्चुअल चेकलिस्ट फॉर ऑडिट ट्रेल,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर आपने वर्किंग पेपर में बनाने हैं? डॉक्यूमेंट्स इज देयर पर्पस क्या है? डेटर लेजर, जर्नल लेजर कंसिलेशन, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, एजिंग शेड्यूल, सेल इनवाइस रजिस्टर, एयर एंड रिसीट लेजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट, ऑडिट वर्किंग पेपर ऑन डेटा, credit rating approval, notes on account doubtful debt. So in that manner, my dear friend, you can do a in-depth analysis of every head of balance sheet just giving a prompt. And with this tool, I will provide you the prompt. Prompt are free of cost, only tool you have to buy. Or all updated prompts which I am preparing on day-to-day basis, as it is getting improved, I will give it to my all subscribers. सारे subscribers को मिलेगा सर. चलिए सर, अब आगे चलते हैं. अब एक और टूल आपको इसमें एक और फंक्शनलिटी दिखाते हैं. इसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडिट होता है हर आगे हर मैं आपको दिखा रहा हूं. नाउ आई एम डूइंग द I am coming to ChatGPT. Now I ask it to do the inventory audit, sir. Standardized prompt for AI based inventory audit. क्योंकि इन्वेंट्री में भी हम बहुत वीक रहते हैं. डाटा और इन्वेंट्री दो मैंने बताए. देखिए हर क्या करता है. अब मैंने बैलेंस शीट में नहीं लगाई इस बार जान के. पहले इसकी मेमोरी में है क्या बैलेंस शीट, देखते हैं. मैंने सिर्फ इन्वेंट्री ऑडिट करने को इसको कहा है और मैंने सिर्फ इसके लिए बैलेंस शीट भी इस बार नहीं लगाई है. देखते हैं क्या ये कर पाएगा. देखिए कर दिया सर. फ्रॉम इट्स ओन मेमोरी it has assumed that we have to do the analysis of last attached balance sheet. So inventory closing value is there, percentage is there, gross profit margin is there, inventory holding base is there, inventory movement period is there, everything it is doing for you. Getting my point? Then shall I proceed for detail audit scope? Now A to G section. Paste, yes, please do. इतना कहना है सर, प्लीज डू. चलिए सर देखिए. डिटेल इन्वेंट्री ऑडिट इज नाउ डन. फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर. No separate report of physical verification or date of stocking find in the uploaded document. What can be the implication? What can be the suggested action? What will be the disclosure requirement? What is the valuation methodology and appropriateness of inventory valuation? What are the observation? Notes in the account state that valued at cost or NRV whichever is less. Method not specified. आपने ये तो बताया है कि कोस्ट और एनआरआईवी विच एवरेज लेस पे वैल्यू हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने फीफो यूज किया, लिफो किया, एवरेज कोस्ट किया, वेटेड एवरेज किया, वट एवर मेथड यू हैव यूज्ड. नॉट वेल मेंशन. अपने आप बता दिया उसने. हर रिस्क ऑफ मिस वैल्यूएशन आ सकता है अगर हमने इसको टेस्ट नहीं किया. सजेस्टेड एक्शन है कि जो भी मेथड है उसे चेक करो और डिस्क्लोजर दो 3CD के पॉइंट्स में. वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड लेजर इंटीग्रिटी के ऊपर भी इसने क्वेश्चन किए हैं. Schedule and balance sheet aligned 70.14 lakh closing stock. However, no inventory ledger GST or 9(2)B reconciliation is available. वहां से हमने कंपेयर नहीं किया है. जस्ट हमने ये देखा कि पीएल और दोनों में सेम है. इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, सजेस्टेड एक्शन क्या हो सकता है. कौन कौन से स्टॉक एब्सोल्यूट हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, स्लो मूविंग हो गए, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं है. इंटरनल कंट्रोल आप क्या बना सकते हैं वो भी बताया है. जीएसटी और स्टैट्यूटरी लिंकेजेस क्या हो सकती हैं. टैक्स ऑडिट में क्या स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर देने हैं. फिर अगर आप चाहते हैं कि इसके भी रेड फ्लैग, सजेस्टेड कंट्रोल और इन्वेंटरी चेकलिस्ट बताई जाए तो यहाँ पर कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना और यस कर देना. आपकी कंप्लीट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार है. मंथली बेस पे भी कर सकते हैं सर. रेड फ्लैग वॉच आउट फॉर. Getting my point? An Excel checklist for inventory audit. Complete checklist. क्या चेक करना है, कंट्रोल क्या होने चाहिए और रेड फ्लैग क्या है आपके लिए तैयार सर. तो सर कुछ अच्छा लग रहा है इसमें आप लोगों को?
कुछ अच्छा लग रहा है सर? एक मिनट के लिए शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है सर? प्रेम कुमार पांडे जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। गणेश अग्रवाल जी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे सर मैं कहता हूँ सर, इसे अभी मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब मेरे को तरह तरह के मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट लेने होते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ सर, दोबारा से आपसे फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, entire screen, share again. I am going to अपनी C audit GPT, paste here. Now standardized prompt for AI based drafting of management representation letter, and what certificate has to be signed along with this management representation letter from the management. Just I have given the information prompt and click here. Click here. What it can do for you? Emerald Uttam Trader Secretary. Auditor's name is already incorporated in my firm name. Management representation letter is there. Journal representation letter. Specific representation. Just wait. Just wait. सर आप देखिए, अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में हमारी कंपनी का नाम आ गया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन आ गई, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो बताई, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल अकाउंट पे ली मैंने, सन्ड्री डेटर्स पे ली, लोन्स पे ली, फिक्स एसेट पे ली, इन्वेंट्री पे ली, कैश एंड बैंक बैलेंस पे ली, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पे ली, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे ली, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे ली, गोइंग कंसर्न पे ली, नीचे साइन। और अब मैं कहता हूं कि जो सर्टिफिकेट मुझे को चाहिए भैया जरा इसका फॉर्मेट भी बना दें। तो मैंने इसको कॉपी किया है, पेस्ट किया और एंटर किया। जस्ट हियर आस्क कि भैया हर शेड्यूल मेरे को सर्टिफिकेट भी बना के दे। देखो हर बनाता है क्या, देखते हैं क्या करते हैं हमारे जीपीटी हब। देखिए सर, जनरल रिप्रेजेंटेशन के बाद नाउ आई आस्क इट टू please see that accompanying management certificates are ready. Certificate of physical inventory, certificate of no cash loan transaction, certificate of reliability of sundry data, certificate of capital account accuracy, certificate of GST ITC reconciliation, certificate of TDS compliance certificate, certificate of contingent liability declaration. Everything is ready for you, my dear friends. Everything is ready for you, my dear friends. Getting my point? Getting my point, my dear friends? तो आपने देखा सर, मैंने अब आपके लिए क्या किया सर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी है। प्रॉम्प्ट शेयर करने हो तो वो भी अच्छा रहेगा सर। हर प्रॉम्प्ट शेयर नहीं होंगे इस कोर्स के साथ, बिकॉज इट इज पेड प्रेम कुमार पांडे जी। यू हैव टू बाय द टूल because very much cost involved in developing that tool, so you have to pay that tool cost, and only that you can buy that tool. And after that tool, with that tool I will provide all the prompt, and this is promise from my side to my members, my brothers and sisters. Whatever enhancement, whatever new prompt, whatever new feature will be added in next 3 years, it will be provided free of cost to the all the subscriber of this utility. Okay, Pandit ji, getting my point? कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ। तो यहां तक आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ नया यूनिक लगा कि एआई हमारे काम में हेल्प कर सकती है, कुछ आसान कर सकती है? कितने लोगों को लगा कि ये कुछ अच्छा टूल आ रहा है बाजार में? यस प्लीज राइट यस और नो। कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ हेल्प होगी या बकवास है?
हर हाँ या ना तो लिख दीजिए। पांडे जी, संदीप जी, रिजेश जी, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने मित्र लगे हुए हैं, बात तो बताएं। चलिए, लगता है कुछ अच्छा नहीं लगा तो आगे बढ़ते हैं सर। Very useful. Thank you so much. Now, I once again sharing my screen with you. Now, this time I am copying another prompt, and this time the prompt is for preparing detailed audit programs. Copy, and here I have given a prompt to prepare a detailed audit program for this audit. So because now all these paper are very important, my dear friends, for the purpose of peer review. As you know that if you want to do any branch audit of any bank branch, now peer review is mandatory. If you are doing the company audit of any listed company, then these papers are mandatory. Otherwise, your firm cannot be peer reviewed. So here I ask it to prepare detailed audit program, sir. I think there is some issue. Yes, now it is start altering. Entity profile sheet. First thing I want to prepare is entity profile sheet for SA 315 compliance and for audit planning. So it will prepare the entity profile sheet for you, whatever information it is available for you. Entity profile sheet, legal name, constitution, PAN, GST, Udyam registration, whatever information is available from the balance sheet, it will auto capture and provide to you. Ownership and governance, nature of business, accounting framework, tax regulatory, banking and financing. These are the questions you have to ask, papers you have to collect. Getting my point? To complete information, it will provide to you. Complete information. Then I ask it for detailed audit program. Please do the detailed audit program. Now detailed audit program is ready for you. What you have to do, what your article have to do. Detailed audit program for your articles are ready for you. Everything it is doing for you, my dear friends. Or very new things are coming in that. Then internal control questionnaire. The question you want to ask from the management for the purpose of your audit, it is capable of doing that also. Internal control questions are ready. Yes, sir. Please see. Internal control question. Functional area, entity controls, control area, question, but reply yes और ऑडिटर फ्लैग है। ये आपके आर्टिकल्स के लिए, ऑडिटर असिस्टेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए कंप्लीट क्वेश्चनर बना दिया एक क्लाइंट के लिए, और किस एरिया से रिलेटेड है वो भी बता दिया। क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट उसका आंसर क्या देता है, और आगे ऑडिटर रिमार्क बना लीजिए, एक्सेल में कन्वर्ट कर लीजिए और ये सारा काम कर लीजिए। एंटिटी कंट्रोल क्या होंगे, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा, इन्वेंट्री को लेके क्या क्वेश्चन है, रेवेन्यू को लेके क्या क्वेश्चन है, रिसीवेबल को लेके क्या क्वेश्चन है, परचेज और पेबल्स को लेके क्या क्वेश्चन है,
बैंक और कैश के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के क्या क्वेश्चन है। जैसे आप पूछ रहे हैं कि आईटीसी रिकंसाइल्ड की गई या टू बी से, टीडीएस डिडक्शन टाइमली है, टीडीएस फाइलिंग टाइमली है, कोई टीडीएस की लिटिगेशन तो नहीं चल रही, कोई ब्याज तो नहीं लगा, कोई ऑर्डर तो नहीं पास हुआ, फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया है, फिक्स एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, डेप्रिसिएशन रेट ठीक है, एमआरआर दिया है नहीं दिया है, तो इस वे ही आप है। और जो क्वेश्चन आपको कमी लगती है इसको कह दीजिए सर, ये दोबारा आपके लिए कर देगा। तो इन दैट वे I have usefulness is always relate with the cost. So it is better that at very first place you reveal the cost. It is very save everyone time and energy. No problem, JSC. I will tell you. I will tell you. No issue in that. I am not asking you to buy it, but learn that कि अगर मैंने कहा कि जनरलाइज जीपीटी भी वही काम करती है सर, कस्टमाइज जीपीटी भी काम वही करती है, लेकिन अगर आपने कस्टमाइज लेना है, किसी चीज को यूटिलाइज करना है, तो उसकी यूटिलिटी से पहले आप उसे सीखिए कि अगर आप मेरा नहीं भी बाय करेंगे या मैं अगर बना सकता हूँ अपना खुद का भी बनाएंगे तो कैसे बनना है, क्या इंफॉर्मेशन आनी है जीएसटी, पहले हम वो सीखने का प्रयास करें। तो इट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ सेशन इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। और एक चीज मैं और यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं, यहाँ पर मैं अपनी पोर्टल का एड्रेस दे रहा हूं, यहां पर आप चले जाइएगा, आपको इस जीपीटी स्टोर के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। मैंने यहां पर मेंशन किया है अभी वेबसाइट का एड्रेस। और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दैट सेशन, आई एम राइटिंग माय मेल आईडी हियर, you can send a mail on that and ask any query. तो फ्रेंड्स, हाउ यू कैन टेक ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एआई का मास्टर हूं, एआई का गुरु बन गया हूं। मैं तो अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर को ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी प्रैक्टिस में यूज करने की एक पहली शुरुआत, एक पहला कदम किस तरह से रख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? डोंट टेक इट अदरवाइज। तो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड कि हाउ दिस एआई इज गोइंग टू रिप्लेस आवर ऑडिट स्टाइल, ऑडिट प्रैक्टिस, ऑडिट वे। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम नाउ योर साइड इज वेलकम। I'm here for 5 minutes more. If you have any query, any doubt, any suggestion, you can ask me right now. Is there any question or should we wind up? I am also writing down my mobile number here. If anyone want to buy that product or now more information on that, you can contact me on that number. Or anytime, any question related to profession with regard to MSME, with regard to startup, with regard to AI, with regard to the income tax litigation in faceless manner, you can contact me. I am not doing any GST practice, no question with regard to GST practice. हमारी प्रैक्टिस इज लिमिटेड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप ऑफ वेरी स्मॉल साइज।
where we have to prepare everything on behalf of client. JSG इस बार नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए नए फॉर्मेट आ चुके हैं, जहां पर शेड्यूल 3 के तर्ज पर आपने वर्टिकल फॉर्म में कंपैरेटिव बैलेंस शीट राउंडिंग ऑफ करते हुए बनानी है। और अगर आप नहीं बनाते, चाहे ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है, चाहे ये अपॉइंटमेंट लेटर है, चाहे बाकी चीजें हैं, तो आप पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला हो सकता है। तो मेरी ये एडवाइस, आज की डेट में छोटा बड़ा कुछ नहीं रह गया है, नॉन कॉर्पोरेट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं रह गया है। अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी भी बढ़ गई है। एमएसएमई के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं, नॉन एमएसएमई के लिए अलग आ गए हैं 24/11/24 से। अब तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, और ये यूटिलिटी जो है आपकी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्मेट पर भी वर्क करेगी। तो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। प्रेम कुमार पांडे जी कह रहे हैं कि जीपीटी स्टोर में ये वाला कोर्स नहीं है। पांडे जी आज शाम तक डल जाएगा, और इसका मैं लिंक आप लोगों को आपकी मेल पे शेयर कर दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट पांडे साहब? Rudeep, can we use AI for preparing audit report and balance sheet? Yes, you can do, but you have to check authenticity and accuracy, Rudeep ji, at your own end. Last year I have purchased your product. Kindly resend the link to use this year. Why, sir? This year you have to buy it again. Sir, हमारी practice is limited only to non-corporate entity. We have to prepare everything on behalf of client. There are major changes in financial reporting for non-corporate entity. Can you have specific in that? Yes, sir. We have conducted a day before a seminar on that. How to prepare financial or non-corporate entities as per the mandate of II. How to assess this prompt? This is available with this tool. We have not decided the price. By end of this evening, you will get everything. Any more question? हर इस टूल के लिए चैट जीपीटी वर्सेस बाय करने पड़ेगा क्या? देखिए प्रेम कुमार पांडे जी, अगर आपने दिन में 5 क्वेरी लेनी है तो कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी फ्री वाली जीपीटी है, जो हमारा सिंपल वर्जन जीपीटी का है, तो उससे दिन में आप 5 क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 से ज्यादा क्वेरी करनी है, 5 से ज्यादा प्रॉम्प्ट दिन में इस्तेमाल करने हैं, तो फिर आपको जीपीटी का प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $25 पर मंथ है। वो जीपीटी को आपको चैट जीपीटी को पे करनी पड़ेगी, ओपन एआई को ही पे करनी पड़ेगी। सर देखिए, मैं आपको जो गाड़ी है, दूसरे शब्दों में समझाता हूँ, गाड़ी जो है चैट जीपीटी है, उसमें जो पेट्रोल डलवाना है वो मेरे प्रॉम्प्ट है। तो मेरे प्रॉम्प्ट की ही ये सारी कॉस्ट है। Anything more, sir? Or should we wind up? Anything more, or should we wind up? I think no one want to ask more question. So thank you so much, sir, for sparing your valuable time with me this Sunday, especially in the morning time when everyone is in the holiday mood, in the weekend mood, and you are sparing your valuable time to listen me, to know about my product. So thank you everyone to be the part of this course, of this webinar, and attending me, listening me, appreciating me. Thank you everyone to be the part of this course. हम इस तरह के वेबिनार लाते रहेंगे, आपको सूचित करते रहेंगे, अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।